Dear students, in previous classes we have discussed about the Gibbs function, work functions, their changes with change in temperature, volume and pressure, and the criteria for the feasibility of a process. In today's lecture, we will discuss the Gibbs-Helmholtz equation. Now, what is the Gibbs-Helmholtz equation? For the derivation of Gibbs-Helmholtz equation, we consider the definition or mathematical equation of Gibbs function G. According to the mathematical expression, Gibbs free energy G will be equal to H enthalpy minus T into S. T is the temperature and S is the entropy. Hence, for an isothermal process अगर isothermal है, then temperature is constant. So, for isothermal process, the Gibbs free energy for initial and final state will be G1. For initial state, we denote the Gibbs free energy as G1. will be equal to enthalpy as initial state minus T है वो isothermal condition है तो temperature constant and entropy for the initial state. This is the equation number 1. For final state G2, as we know that we discussed in previous lecture that the Gibbs free energy is a state function. It doesn't depends upon the path of the process. So for initial and final state, we consider the Gibbs free energy. Here this is denoted by equation number 2. Now the change in Gibbs free energy when we go from initial state to final state, then the change in Gibbs free energy can be given as by subtracting the equation number 1 from equation 2, and we get the G2 minus G1 will be equal to, from here, H2 minus H1 and minus T here common हो जाएगा, यहाँ पे minus T common and then S2 minus S1. इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा जी change in Gibbs free energy is equal to delta H, that is change in enthalpy of the process, minus T delta S. This is the most important equation and we assign this equation as equation number 3. Now also for change in Gibbs free energy, we can also write that G is equal to H माइनस टी एस हमने लिखा और H इंथैल्पी को हम क्या लिख सकते हैं? U प्लस पी वी. फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ ए प्रोसेस इट विल बी इक्वल टू H U plus PV here minus as it is TS. This is equation number 4. Here in this equation G बोथ साइड अगर हम इसका कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन करें देन डी जी इक्वल टू डी यू प्लस पी कॉन्स्टेंट डी वी प्लस वी कॉन्स्टेंट डी पी माइनस टी कॉन्स्टेंट डी एस माइनस एस कॉन्स्टेंट डी टी. This is equation number 5. Now according to the definition of entropy, as we discussed in previous lectures many times, that ds, the change in entropy, will be equal to dq, reversibly amount of heat absorbed by the system at particular temperature T. From here we also know that this is equation number 6, and in previous topics we have derived many times from the first law of thermodynamics that dq of reversible is equal to du plus pdv. This is equation number 7. Put the value of dq reversible from equation 7 in equation 6 and we get the result ds will be equal to du plus pdv divided by t. From here t इधर आके multiply हो जाएगा left side, then t ds is equal to du plus pdv.
This is equation number 8. Put the value of TDS from equation 8 in equation 5. Equation 5 में dz as it is, du plus pdv as it is, यहाँ पे vdp as it is, सिर्फ माइनस TDS की जगह क्या आ जाएगा, du plus pdv. जब यहाँ माइनस साइन है तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, माइनस में. एंड वी गेट द रिजल्ट हेयर dz equal to du plus pdv plus vdp minus du minus pdv minus sdt. We assign this equation as equation number 9. In this equation here du positive, here du negative, so it will become cancelled, and pdv here positive, here negative, so it will also cancel each other. और हमारे पास रिजल्ट है वो क्या बचेगा, dz है that will be equal to vdp minus sdt. This is equation number 10. Now according to equation number 10, if we get pressure is kept constant, if pressure is kept constant then dp will be equal to 0. अगर प्रेशर कांस्टेंट है और dp 0 है तो हमारे पास रिजल्ट है इक्वेशन 10 से वो क्या आ जाएगा, dg will be at constant pressure will be equal to माइनस ऑफ एस डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अगर डी टी है इधर डिवाइड में आ जाएगा, डी जी बाय डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एंट्रोपी. वी कैन ऑल्सो फॉर स्मॉल चेंजेस के लिए हम क्या लिख सकते हैं, कर्ल जी बाय कर्ल टी. For small changes, we can also write curl G by curl T at constant pressure will be equal to minus S. This is the equation number 11. अब ये जो हमने इक्वेशन निकाली है 11, ये तो जनरल है किसी भी प्रोसेस के लिए, किसी स्टेट पे चेंज इन गिव्स फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एंट्रोपी एट दैट स्टेट. इसका मतलब हम अगर यही इक्वेशन इनिशियल स्टेट या फाइनल स्टेट के लिए लिखें तो फॉर द इनिशियल स्टेट कर्ल जी बाय कर्ल टी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वी कैन असाइन द कर्ल जी 1 बाय कर्ल टी. जब आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टी तो सेम है. एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू एंट्रोपी एट इनिशियल स्टेट दैट इज S1. दिस इज इक्वेशन नंबर 12. सिमिलरली फॉर द फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट के लिए जो जितनी भी टर्म यूज़ हो रही है वो हम फाइनल स्टेट की टर्म यहाँ पे लिखेंगे. फाइनल स्टेट के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, कर्ल G2 बाय कर्ल T एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ S2 यानी कि एंट्रोपी ऑफ फाइनल स्टेट. दिस इज इक्वेशन नंबर 13. नाउ सब्ट्रैक्ट करें अगर हम इक्वेशन नंबर 13 से इक्वेशन नंबर 12 को, इक्वेशन 12 को 13 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, कर्ल G2 बाय कर्ल T एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस कर्ल G1 बाय कर्ल T एट कांस्टेंट प्रेशर will be equal to minus of S2 here and minus S1. यहाँ से हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, अगर कर्ल बाय कर्ल टी हम बाहर निकाल लें, दोनों में कॉमन है, देन वी गेट हियर कर्ल बाय कर्ल टी G2 माइनस G1 एट कॉन्स्टेंट प्रेशर विल बी इक्वल टू, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस S2 प्लस S1. अगर इसमें से हम माइनस साइन कॉमन निकाल लें और यहाँ G2 माइनस G1 को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन गिव्स फंक्शन, दैट इज हेयर वी कैन राइट एज कर्ल बाय कर्ल टी ऑफ डेल्टा G एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम माइनस साइन कॉमन निकाल ले देन इट विल बी S2 माइनस S1 और वी कैन असाइन हेयर दैट द डेल्टा G, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, कर्ल ऑफ डेल्टा G बाय कर्ल T एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा S. मीन्स अगर हम गिव्स
फंक्शन में जो चेंज है उसका डेरिवेशन लें विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, वी कैन से दैट द change in Gibbs function with change in temperature at constant pressure will be equal to the change in entropy. This is the equation number 14. Now put the value of minus delta at from equation 14 into equation number 3. जो हमने यहाँ निकाली थी इक्वेशन नंबर 3, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो यहाँ पे माइनस डेल्टा एस की जगह हम ये वैल्यू अगर पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन थर्ड हमारे पास क्या है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, तो माइनस डेल्टा एस की जगह अगर हम ये वैल्यू पुट करें तो हमारे पास रिलेशन है वो क्या आएगी, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच हेयर प्लस में टी माइनस ऑफ डेल्टा एस किसके इक्वल है, कर्ल ऑफ डेल जी बाय कर्ल टी एट कांस्टेंट प्रेशर. This is equation number 15 and this equation is known as the Gibbs-Helmholtz equation. And this is the most common form है ये, most common form for the फॉर्मेशन ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन. इसी तरीके से अगर हमने ये इक्वेशन हमने कब निकाली, कब डिराइव करी, जब हम स्टार्टिंग क्या लेके चले, हम स्टार्टिंग इक्वेशन है वो लेके चले थे गिब्स फ्री एनर्जी की डेफिनेशन, दैट इज़ जी विल बी इक्वल टू हेयर एच माइनस टी एस. ये स्टेटमेंट हम लेके चले थे डेफिनेशन. इसी तरह हमने जब वर्क फंक्शन के लिए भी निकाल सकते हैं, जिस तरह से हमने गिब्स फंक्शन के लिए निकाली है. वर्क फंक्शन के लिए निकालेंगे तो वर्क फंक्शन के लिए हम इक्वेशन क्या लेके चलेंगे, ए विल बी इक्वल टू यू माइनस टी एस. जस्ट डिफरेंस क्या है, जी की जगह ए, एच की जगह यू. तो सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे जैसे ये गिब्स फंक्शन के केस में किए हैं उसी तरीके से, और वी गेट द रिजल्ट. जब इस इक्वेशन से ये डिराइव किया है तो इस इक्वेशन से हम डिराइव कर सकते हैं रिजल्ट क्या आएगा, जैसे जी का डेल्टा जी, देन ए का यहाँ पे आएगा डेल ए विल बी इक्वल टू एच किस में कन्वर्ट हो गया, डेल एच, देन यू विल बी बिकम डेल यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस टी एज इट इज, एंड एंट्रोपी यहाँ पे क्या हो गया, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ऑफ डेल जी, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ल बाय कर्ल टी del A here and at constant pressure. So we get the same result in terms of work function as in terms of Gibbs function. So this is also a Gibbs-Helmholtz equation. इसीलिए इसको Gibbs and Helmholtz equation बोलते हैं, क्योंकि हम Gibbs और गिब्स फंक्शन एंड हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन दोनों के लिए इस इक्वेशन को ड्राइव करते हैं. और दिस इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन. अनदर फॉर्म भी है गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन की. हम अनदर फॉर्म क्या ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर 16 इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन. तो इक्वेशन 15 भी गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन है, ये 16 भी गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन है. और एक अदर वे में भी हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन को लिख सकते हैं. वो कौन सी है कि अगर हम इक्वेशन 15 को डिवाइड कर दें टेम्परेचर के स्क्वायर से, बोथ साइड अगर हम टेम्परेचर के स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा हेयर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल जी बाय टी स्क्वायर इक्वल टू डेल एच है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल एच बाय टी स्क्वायर. सॉरी यहाँ पे T2 नहीं आएगा, टी का स्क्वायर है ये, प्लस में जब यहाँ से टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, जस्ट 1 बाय टी कर्ल ऑफ डेल जी बाय कर्ल टी एट कांस्टेंट प्रेशर. ये इक्वेशन हमारे पास आई है. इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, जी वाली टर्म अगर हम एक साइड रख लें, दोनों जी वाली टर्म एक साइड रख लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे एच टर्म्स को, इंथैल्पी की टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड लाई जाते हैं और जी की टर्म है जो चेंज इन गिब्स फंक्शन उसको हम राइट साइड ले आते हैं. तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा हेयर, 1 बाय टी कर्ल ऑफ डेल जी by curl T at constant pressure minus
ये चीज़ इधर आके माइनस में हो जाएगी, डेल जी बाय टी स्क्वेयर विल बी इक्वल टू, जब ये टर्म उस साइड जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, देन इट विल ऑल्सो बिकम माइनस ऑफ डेल एच बाय टी स्क्वेयर। अब आप ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन में अगर हम देखें 1/t एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन है ऑफ डेल जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है। यानी कि फर्स्ट टर्म अगर मैं 1/t ले लूँ वो एज इट इज़ है, सेकेंड टर्म जैसे एक्स वाई लेते हैं हम, एक्स एज इट इज़ पहले, फिर वाई का डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस में y एज इट इज़ x का डिफ्रेंशिएशन। तो इसी तरह की कुछ ये स्टेटमेंट बन रही है, 1/t एज इट इज़ है और यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन किसका हो रहा है, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट टू कर्ल g का, ठीक है। तो एक फंक्शन मैंने ये ले लिया 1/t और दूसरा ले लिया कर्ल g, प्लस में दूसरी बार क्या हो जाएगा, इस बार हम कर्ल जी कांस्टेंट, डेल जी कांस्टेंट रखेंगे और 1/t का विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो 1/t का क्या हो जाएगा, t की पावर जो है वो -1 है, यहाँ पे वो आगे आ जाएगी और एक पावर है वो लेस हो जाएगी। जैसे कि x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं x की पावर n का, देन n इंटू एक्स की पावर n-1। यहाँ t की पावर 1/t है और वी कैन से दैट t की पावर -1 है, देन -1 आगे और t की पावर -1 कितनी हो जाएगी, -2। तो हियर वी कैन राइट दैट 1/t स्क्वेयर। तो एक तरह से ये पूरी स्टेटमेंट है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन है किसका, पूरी टर्म जो डेल जी बाय टी है इस इकट्ठे का कर्ल बाय कर्ल टी, किस कंडीशन पे, एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज इक्वल टू माइनस डेल एच बाय टी स्क्वेयर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 17 और वी कैन assign this is the another or we can say the third form of the Gibbs-Helmholtz equations. तो ये भी Gibbs-Helmholtz equation, this is also Gibbs-Helmholtz equation, and this is also sometimes also consider the Gibbs-Helmholtz equation as these equations. Now in this equation जैसे हमने दोनों या तीनों फॉर्म डिस्कस की है, इसमें हम देखते हैं कि जो ये Gibbs-Helmholtz इक्वेशन है, यहाँ डेल जी बी क्या है, ये स्टेट फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। इंथैल्पी चेंज है वो भी क्या है, पाथ फंक्शन नहीं बल्कि स्टेट फंक्शन है, एंड टेम्परेचर इज ऑल्सो स्टेट फंक्शन। तो एक तरह से ये पूरी इक्वेशन है पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है, स्टेट पे डिपेंड कर रही है। स्टेट पे डिपेंड कर रही है तो पाथ चाहे रिवर्सिबल हो या फिर इरिवर्सिबल, प्रोसेस रिवर्सिबली हो रहा हो या फिर इरिवर्सिबल, तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है वो दोनों प्रोसेस में होल्ड करेगी, चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो या फिर इरिवर्सिबल हो। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस इक्वेशन की एप्लीकेशन क्या है, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, यानी कि हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का यूज़ कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल एप्लीकेशन क्या है, जैसे हमारे पास ये है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन हेयर, डेल जी इक्वल टू डेल एच प्लस टी इंटू डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर ऑफ डेल जी एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर हमें इस इक्वेशन में गिव्स फंक्शन में चेंज पता हो कि नहीं दो स्टेट पे, तो हम वहाँ से डेल एच डिटरमाइन कर सकते हैं। या फिर हमें पता हो कि अगर हमें डेल एच यानी कि इंथैल्पी चेंज पता हो कि नहीं दो कंडीशन पे, तो हम वहाँ से कि नहीं दो टेम्परेचर पे, तो वहाँ से हम चेंज इन गिव्स फंक्शन निकाल सकते हैं। ये तो थी सिंपल एप्लीकेशन, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ये है कि हम जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से निकाल सकते हैं। जैसे लेट कर लिया हमने कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन है, जिंक और कॉपर सल्फेट की जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो जिंक है वो जिंक सल्फेट में यूज़ हो जाता है, कॉपर है वो कॉपर सल्फेट है वो सिंपल कॉपर में, यानी कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन। तो सिंपल जब हम एक बीकर में, सिंगल बीकर में इस रिएक्शन को करवाते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन हीट इवॉल्व होती है, हीट रिलीज होती है। लेकिन अगर हम इसी रिएक्शन को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में करवाएं,
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, जब केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जब इसकी ये रिएक्शन होती है तो सबसे पहले ये देखा गया, ये एक्सप्लेनेशन दी गई अर्लियर टाइम में कि जितनी इस रेडॉक्स रिएक्शन से हीट इवोल्व होती है सिंगल बीकर में, उतनी ही अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होएगी अगर इस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में करवाते हैं। बट एक्चुअल में हर जगह ऐसा पॉसिबल नहीं था। साइंटिस्ट गिब्स एंड हेल्महोल्ट्ज ने ये प्रूफ किया कि इस रिएक्शंस को जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में करवाते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो उतनी प्रोड्यूस नहीं होती है जितनी हीट इवोल्व होती है। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिकल, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया और ये प्रूफ किया कि एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो इक्वल होती है कि उस सेल के अंदर उस केमिकल रिएक्शंस के में जो भी प्रोसेस मिक्सचर वहाँ पे है उसकी गिब्स फ्री एनर्जी में कितना डिक्रीज आता है। सो अकॉर्डिंग टू गिब्स एंड हेल्महोल्ट्ज ने एक्सप्लेन किया कि जब केमिकल सेल्स में ये रिएक्शन हो रही है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में, तो उस सेल रिएक्शंस में गिब्स फ्री एनर्जी में कितना डिक्रीज आएगा। जितना डिक्रीज आएगा गिब्स फ्री एनर्जी में, उतनी ही वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो प्रोड्यूस होगी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो प्रोड्यूस कितनी होगी उसको हम किस फॉर्मूला में देते हैं, अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है कैथोड से एनोड, या फिर टोटल एक इलेक्ट्रोड पे कितने इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पे। तो अगर जनरल बात करें n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा हो तो n फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इफ E is the EMF of the cell, then NFE is the total electrical energy produced, which will be equal to the decrease in Gibbs energy in a cell reaction। तो ये इक्वेशन अगर हम पुट करें दिस गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन में, अगर इसको हम हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट है हेयर वो क्या आएगा, जी को जगह यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस NFE विल बी इक्वल टू डेल H, प्लस में प्लस का साइन यहाँ पे है T और कर्ल बाय कर्ल T हेयर, एंड यहाँ पे डेल G की जगह क्या आ जाएगा माइनस NFE, और पूरा टर्म है वो क्या हो जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर। इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर बोथ साइड माइनस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस से बोथ साइड अगर हम मल्टीप्लाई कर दें देन इट विल बी इक्वल टू NFE of the cell will be equal to minus of del H प्लस में T, क्योंकि माइनस आएगा और फिर प्लस हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, NF है दैट इज़ बाहर हो जाएगा कांस्टेंट है, और यहाँ पे क्या रह जाएगा डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर of the EMF of the cell at constant pressure। this कर्ल E by कर्ल T टर्म यानी कि टेम्परेचर के साथ EMF में कितना चेंज आता है, दिस टर्म इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट्स। सो दिस इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट। इस इक्वेशन से अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन फ्रॉम हेयर। तो इस इक्वेशन से अगर यहाँ पे हमें टेम्परेचर कॉफिशिएंट पता हो यानी कि कर्ल E बाय कर्ल T पता हो तो हम डेल्टा H कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि इंथैल्पी में कितना चेंज आ रहा है। अगर हमें इंथैल्पी चेंज पता हो तो हम टेम्परेचर कॉफिशिएंट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन में जैसे एक्चुअल में जो चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी अकॉर्डिंग टू गिब्स एंड हेल्महोल्ट्ज वो क्या होगी दिस, यानी कि प्रोसेस में कितना गिब्स फ्री एनर्जी में डिक्रीज आएगा, जितना डिक्रीज आएगा उतनी ही वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। लेकिन जो अर्लियर फॉर्मूलेशन था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी उतनी प्रोड्यूस होगी जितनी हीट इवॉल्व होती है, वो ट्रू है, लेकिन किस केसेस में, इस इक्वेशन में अगर टेम्परेचर कॉफिशिएंट जीरो हो। लेट कर लिया टेम्परेचर कॉफिशिएंट जीरो यानी कि कर्ल E बाय कर्ल T अगर जीरो हो, ये हम जीरो पुट करें तो ये इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगी, इफ कर्ल E देन NFE of cell will be equal to
माइनस ऑफ डेल्टा एच। जब ये जीरो होगा तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। तो ये इक्वेशन क्या कहता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी, जितनी हीट एनर्जी डिक्रीज होगी। माइनस का साइन है, इसका मतलब हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, इवोल्व हो रही है। सो दिस इक्वेशन जो सबसे पहले ये माना गया था कि किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी उतनी प्रोड्यूस होगी जितनी नॉर्मल रेडॉक्स रिएक्शन में हीट इवोल्व होती है। तो वो सिर्फ और सिर्फ तभी ट्रू है जब टेम्परेचर कॉफिशिएंट है वो जीरो होगा। Okay, so this is the Gibbs-Helmholtz equation and the application of Gibbs-Helmholtz equations, and in next lecture we will discuss the third law of thermodynamics. Thank you.